Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss a very famous poem by Robert Frost, The Road Not Taken. This poem is world's best known poem written by American poet Robert Frost. This poem was written in 1915 in England. This is a very beautiful poem which reflects real life situation everyone faces. So Robert Frost has very beautifully and witfully explained the dilemma we face in real life. So let's begin the poem and understand the in-depth meaning of this poem. So this poem is all about a person standing in front of two diverging roads and he has to make a choice which road to choose. The diverging road symbolizes the real life situations. हमें काफ़ी बारी ऐसे सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है जब हमें दो चॉइस में से कोई एक चॉइस चूज़ करनी होती है और हम उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज करके अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि वो हम सही डिसीजन लें. So here also the poet represent through this poem the poet represent this dilemma we face every day in our life to choose one decision out of the two, and sometimes this decision made by us leads to happiness. This was a brief introduction to the poem. Now let's start with detailed explanation of the poem. So let's begin with stanza 1. Here each stanza has 5 lines and the poem is divided into 4 stanzas. So here we begin with our first stanza. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. So here the poet has used beautiful imagery as we can see through the diction of the lines. Two roads diverged in a yellow road. The first line itself shows very beautiful imagery. There are two roads which are getting diverged. Diverged means divide. जो रोड है दो रोड में डिवाइड हो रहे हैं. येलो वुड एक येलो फॉरेस्ट में डिवाइड. डाइवर्ज मतलब डिवाइड. रोड डिवाइड हो रहा है दो में येलो वुड्स में. येलो हेयर रिप्रेजेंट सीज़न, ऑटम सीज़न. ऑटम सीज़न में क्या होता है, पतझड़ होता है, तो जो हमारा वुड है वो पत्ते पीले होकर सारे गिरे हुए होते हैं, तो जो हमारा जंगल है वो पीला पीला लगता है इंस्टेड ऑफ ग्रीन. तो यहाँ पे फॉरेस्ट को येलो, it's just like it's giving reference that the season is autumn. You can even see in the picture. Now let's go to the second line. And sorry I could not travel both. Here the poet is already sorry. This represents the theme of regret. The poet is even sorry before he has chosen the road. He's sorry because he cannot travel the both the roads, so he has to choose one out of the two. In real life situation also, we get few options and we can only opt for one. We cannot travel both the streams. For example, you cannot choose both science and commerce and study. Okay, you have to choose any one. So he is already sorry कि वो दोनों routes नहीं choose कर सकता. And be one traveler long I stood. यहाँ पे वो एज अ ट्रैवलर बहुत टाइम तक खड़े होके सोचता है उसी कोने पे, उसी डाइवर्जन पे कि कौन सा रोड उसे चूज़ करना है. वो वहीं पे खड़ा होके सोच रहा है. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. और वो उन रास्तों को जितना दूर तक हो सकता है देखने की कोशिश कर रहा है उस पॉइंट पे खड़े होके, उस डाइवर्जिंग पॉइंट पे खड़े होके. टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ. वो रोड जहाँ मुड़ रहा है उसने वहाँ तक अपनी नज़र पहुँचाने की कोशिश की है, वो इतनी दूर तक देखने की कोशिश की है. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड स्टैंजा.
फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि पोइट डिलेमा में है कि वो कौन सा रास्ता चुने। वो एक पॉइंट पर खड़े होके अपना रास्ता चुनने की कोशिश कर रहा है और वो दोनों रास्तों को देख रहा है कि वो कौन सा रास्ता चूज़ करे। So now let's come to the second stanza. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. अब यहाँ पे हमारे पोइट ने डिसीजन ले लिया है कि उसको कौन सा रास्ता चलना है। The individual in the road not taken finally makes the decision and choose a road that he thinks and he believes is the better one, because अब यहाँ पे देखो उसको जो लगता है रास्ता बेटर, then took the other as just as fair and having perhaps the better claim, जो बेटर क्लेम कर रहा है, जो फेयर लग रहा है, उसने वो रास्ता चूज़ कर लिया है। और उसने ये रास्ता क्यों चूज़ किया है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। उसको लगता है कि ये रास्ता बहुत ग्रासी है और वो चाहता है कि वो उस रोड पे चले, ठीक है, बट ये वाला रास्ता वो चूज़ करता है जो बहुत ज़्यादा ग्रासी है और उसको लगता है कि इस पे बहुत लोग नहीं चले हैं, क्योंकि ये अगर ऐसा होता तो इसकी भी घास मतलब हट जाती। होता है ना, ग्रास उतनी फ्रेश नहीं लगती, दबी कुचली हुई नहीं लगती, इस वजह से उसको लगता है ये रास्ता किसी ने चूज़ नहीं किया है अब तक, इसलिए ये रास्ता वो चूज़ करना चाहता है। सो बट लेकिन नेक्स्ट लाइन में वो क्विकली ऐड कर देता है, दो एज फॉर दैट द पैसेज देयर though as for that the passing there had warned them really about the same. So however in the next line he is quickly adding that the other road looked equally used in comparison to one he chose. लेकिन उसको फिर बाद में लगता है शायद ये मेरी इंट्यूशन ही है कि ये वाला रास्ता कम चला हुआ है, वो वाला रास्ता ज़्यादा चला हुआ हो सकता है ये दोनों इक्वली चूज़ किए गए हों। So let's come to the next stanza. So now let's come to the third stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So here in the third stanza, Robert Frost mentions in lines 11 and 12 that at that moment individual is making decision. The both parts were really identical. The very next line is very important when he finalizes his decision leaving the other road for perhaps another time. अब आपने देखा कि यहाँ पे उसने बोल दिया कि वो इक्वली ही से हैं रोड, और जो लीव्स हैं वो स्टेप हैज़ नॉट ट्रोडन ब्लैक, मतलब कि उन पे चल के वो दबे कुचले नहीं लग रहे। जैसे कि हम स्टेप कर देते हैं तो हमें थोड़ा फील होता है ना कि यहाँ पे स्टेप किया है लोगों ने, इस वजह से ये है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। और बट वो फील करता है कि चलो अभी मैं ये रास्ता ले लेता हूँ और दूसरा वाला जो रास्ता है वो फिर कभी मैं उस रास्ते पे चल लूँगा। फिर वो कहता है लेकिन मुझे ये भी पता है कि एक रास्ता जब हम चलने लग जाते हैं तो वो आगे और रास्तों को कनेक्ट करता रहता है और वो वापस आ पाओगे या नहीं आ पाओगे आपको नहीं पता। वो डाउट अपना कन्फेस करता है अपने आप से कि इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो वापस आएगा और इस दूसरे रास्ते पे चल पाएगा, बिकॉज उसको पता है कि अगर वो इस रास्ते पे आगे चला गया, ऑलरेडी एक रास्ता उसने ले लिया, तो वो आगे फर्दर एंड फर्दर उसको आगे रोड्स पे लेता जाएगा और उसको वो मौका नहीं मिलेगा कि वो वापस इस जगह पे आ पाए जिस मोमेंट पे वो अभी है। ओके, जैसे कि अगर आपने साइंस या कॉमर्स आपने ले ली, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, आप अपनी आगे पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, आप अपनी 11th करोगे 12th करोगे
उसके बाद आप ये नहीं सोचोगे कि अब मैंने यार ये ले लिया, मुझे वो लेना चाहिए था, और अपने आप पढ़ाई दोबारा शुरू नहीं करोगे। या फिर आपको 12th के बोर्ड्स में आपके नंबर अच्छे नहीं आए, अब आप सोच रहे हो कि मैंने तो ये गलत स्ट्रीम ले ली, अब मैं दोबारा से दूसरी स्ट्रीम लेके दोबारा पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। ऐसा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ये डिसीजन वापस, एक बार आप एक डिसीजन ले लेते हो वो आपको फर्दर एंड फर्दर आगे लेता जाता है। आपने कॉमर्स लिया, आपने 11th की, आपने 12th की, फिर आगे आप कॉलेज करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कॉलेज में पहुंच गए और अब आपको अचानक से फील हो रहा है कि ये रास्ता तो गलत ले लिया मैंने, वापस जाके मैं दूसरा रास्ता लेकर आती हूँ। नहीं, वही पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ये जो रास्ता है, एक बारी मैंने, पहले तो वो ये कहता है कि मैं इस रास्ते पे दोबारा आ जाऊँगा, और बट नाउ वो अपने आप से कन्फेस करता है कि अगर मैंने एक बार ये रास्ता ले लिया तो ये आगे मुझे फर्दर एंड फर्दर लेता जाएगा, और वो कभी घूम के इस रास्ते पे दोबारा नहीं आएगा। And now let's come to the last stanza, that is fourth stanza. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. In the last stanza, the individual predicts that एक दिन ऐसा होगा, one day far into the future, he will tell the story of his decisions that he has taken. एंड आज वो यहाँ पे इस वजह से है क्योंकि उसने एक दिन ये डिसीजन लिया था कि उसने एक अलग रास्ता चुना था जो कम लोगों ने चुना था। उसने भेड़ चाल फॉलो नहीं की थी, और आज वो इसलिए यहाँ पे है क्योंकि उसने वो रास्ता चूज़ किया था, एंड उस रास्ते ने ही सारा डिफरेंस मेक किया है उसकी लाइफ में। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। मैंने वो लेस ट्रैवल रास्ता चुना और उसने सारा डिफरेंस क्रिएट किया। सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।